میدان جہاں پر پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کاغذات نامزدگی داخل کرانے آیا۔ الیکشن کمیشن کے شیڈیول کے مطابق 6 تاریخ، 7 تاریخ اور 8 تاریخ کو NA 156 ملتان 3 کے کاغذات وصول کرنے تھے ADCR نے، جن کو کہ الیکشن کمیشن نے اس حلقے کا RO تعینات کیا۔ کل رات اچانک ایک نیا مراسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ وہ شخصیت جس نے ہمیں کاغذات نامزدگی ایشو کیے، جس کے سامنے میں نے آج پیش ہونا تھا، ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد RO تبدیل چھوٹا افسر تبدیل نہیں ہوتا کہ جائے کہ RO تبدیل کیا جائے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ نگران سیٹ اپ کس قسم کے انتخابات کروانا چاہتی ہے۔ پنجاب میں جس انداز میں تبادلے کیے جا رہے ہیں اور من پسند تعیناتیاں کی جا رہی ہیں سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے، وہ اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں رہی۔ پاکستان کے عوام اور شہری یہ ان کے ساتھ جو مذاق کیا جا رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ جو پختہ سیاسی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں اور جو سیاسی عمل کا حصہ رہے ہیں اور ان چیزوں کو باریکی سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے لوگوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ایک انتقامی کارروائی کا ماحول آپ کو پورے پنجاب میں دکھائی دے رہا ہے۔ ان حالات میں ہم میدان میں اترے ہیں، جیسے میں نے کہا، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی جماعت کا نقطہ نظر پیش کرنے اور ان کے جو پروگرام ہیں ان کو بے نقاب کرنے۔ پاکستان کے شہریوں کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ اس وقت آزمائش ہے پاکستان کی عدلیہ کی کہ جس طرح آئین کو، رول آف لا کو پامال کیا جا رہا ہے، اس کا دفاع صرف اور صرف عدلیہ کر سکتی ہے۔ آزمائش ہے الیکشن کمیشن کی، جو ان کو آئینی ذمہ داری سونپی گئی ہے شفاف الیکشنز کی، وہ اس آئینی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ہمیں ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ نہیں تو شیڈیول کے بعد عام افسروں کو چھوڑیے، ریٹرننگ آفیسر کی تعیناتی اور تبادلہ آج تک میں نے کبھی نہیں سنا۔ 40 سال ہو گئے مجھے عملی سیاست میں۔ یہ واقعات جو آج رونما ہو رہے ہیں، میں نے ماضی میں کبھی نہیں دیکھے۔ مختلف ادوار آئے، ہم نے بہت سی اونچ نیچ دیکھی ہے، لیکن ایسا نظام پہلے نہیں دیکھا۔ یہ بالکل ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ اور اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ایما سے یہ تبادلے کیے جا رہے ہیں،
तो फिर इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाने में कम से कम मुझे नाकाम दिखाई दे रहा है। यह आजमाइश है पाकिस्तान की सिविल सर्विस की, और सिविल सर्विस में लोग जो आते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं। पाकिस्तान के बच्चे बच्चियां, नौजवान, खवातीन कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू आते हैं, सिफारिश के जरिए नहीं। और वो मुहाफिज हैं आइन के, वो मुहाफिज हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के, और उनका ओधा इस बात की जिम्मेदारी उन पर आयद करता है कि वो सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट हैं, हुकूमत वक्त के नहीं। और अगर हुकूमत वक्त अपने सियासी मकासद के लिए उनको इस्तेमाल करना चाहती है तो उन्हें ऐसा हुकूमत वक्त का आलाकार हरगिज नहीं बनना चाहिए। उन्हें कानून, आइन, इखलाकियात के तकाजों पर कौम को पूरा उतरकर दिखाना है। यह है आजमाइश इस इदारे की जिसे हम सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। बदकिस्मती से यके बाद दीगर मुख्तलिफ अदवार में इस इदारे को कॉम्प्रोमाइज किया गया, पोलिटिसाइज किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी गई, और खमियाजा सबने भुगता और भुगतेंगे। पाकिस्तान के हालात इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि अब माजी की रविश से हटकर ऐसी रिवायात कायम करें जिससे लोगों को इस पूरे प्रोसेस पर एतमाद हो। अगर लोगों का इस प्रोसेस से एतमाद उठ गया तो मुल्क में अफरा तफरी होगी, इंतशार होगा, इंतखाबात हो जाएंगे। अगर इंतखाबात के नताइज कौम ने कबूल न किए तो वो इंतखाबात बेमानी हो जाएंगे। अगर सियासी इस्तेकाम जो पाकिस्तान की जरूरत है, जो हमारी मईशत की बहाली के लिए लाजिम है, अगर वो सियासी इस्तेकाम हासिल करने में हम नाकाम हो गए और ये इंतखाब उसका जरिया बन गया उस नाकामी का, तो ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये आजमाइश है हमारी अदलिया की कि वो जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में क्या किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान का हर घराना उनसे उम्मीद लगाए बैठा है। यह आजमाइश है पाकिस्तान की पुलिस की कि वो क्या कानून के दायरे के अंदर रहते हुए आगे बढ़ती है या हुकूमत के टूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। मैं कल रात देख रहा था और ताज्जुब हो रहा था कि इसी गुजरात जिले में चंद हफ्ते पहले जो सीपीओ, डीपीओ और जो वहां आरपीओ साहिबान थे, जो वहां कुंजा हाउस की हिफाजत के लिए मामूर होते थे, कल रात उनको दीवारें फलांगते देखा गया। मैं समझता हूं उनकी मजबूरियों का मुझे एहसास है। 25 मई के वाकयात पाकिस्तानी कौम की नजरों से ओझल नहीं हैं, और इस वक्त जो धमकियां दे रहे हैं वजीर दाखिला, वो माहौल को साजगार आलूदा करने में किरदार अदा कर रहे हैं। एक तरफ दावत दी जाती है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की, और दूसरी तरफ ये अमल और ये अमली मुजाहरा आपके सामने है। गिरफ्तारियां, लोगों की दहलीज पार करना, ये तजादात हैं, और इन तजादात की मैंने पहले भी निशानदेही की है और आज भी कर रहा हूं। ये आजमाइश है मीडिया हाउसेस की
कि क्या वो हकायक लोगों तक पहुंचाने में अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं या निभा रहे हैं। लोग नजर रखे हैं, लोगों ने हर चैनल पर रखी है नजर, और जो चैनल निभा रहा है लोग उसको देख रहे हैं, और जो कतरा रहा है लोग उसे स्विच कर रहे हैं और उस चैनल की तरफ अपनी तवज्जो दे रहे हैं जो उनकी राय में फेयर रिपोर्टिंग कर रहा है। ये आजमाइश पाकिस्तान के उन इदारों की है जो पाकिस्तान के इस वक्त जो नाजुक हालात हैं उन पर उनकी नजर है। जो माशी बहरान हमारे सर पे मंडला रहा है और जो दहशतगर्दी का एक नया तूफान हमने अगस्त से देखा है और पेशावर का सानिया आपके सामने है, ये सब वाकयात कुछ और तकाजे कर रहे हैं कौम से, सियासतदानों से, सिविल सर्विस से, सिविल सोसाइटी से, आम शहरियों से, और हुकूमत वक्त जो मरकज में पीडीएम की है उसका अंदाज़े फिक्र और सोच और अमल उसके उलट है। तो मैं आज पूरी कौम को आगाह कर रहा हूं और इनके जो ताजा वाकया मैंने आपके सामने देखा है कि रात को आरओ की तबादला, ये एक निशानदेही है। कतरे कतरे से दरिया बनता है और ये मैसेजिंग है जो दी जा रही है। पाकिस्तान के शहरियों से मेरी अपील है, जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि वो खामोशी से सब देख रहे हैं और नोट कर रहे हैं। हम हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि आप गिराव जलाव करें, तोड़ फोड़ करें, लोगों की सरकारी या निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाए। हरगिज़ हमारा ये इरादा नहीं है, ना हमारी ख्वाहिश है। लेकिन उन्हें इस फस्तायत के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी, उन्हें इसका मुकाबला करना होगा। और मुकाबले का एक तरीका जो आवाम के पास है वो ये है, अगर वाकईतन वो तंग है इस महंगाई, बेरोजगारी, इस लाकानूनियत से, तो फिर 16 मार्च को उन्हें बाहर निकलना होगा और वो अपने वोट की ताकत से एक पैगाम देना होगा। उन सब कुव्वतों को पैगाम देना होगा जो मनपसंद नताइज हासिल करना चाहती हैं, क्योंकि आज रिवायती सियासत से हटकर पाकिस्तान की बका की सियासत का आगाज हो रहा है। रिवायती सियासत में रिवायती सियासतदान सर झुका लेते हैं, मसलहतों के कायल हो जाते हैं, अपने मफादात को तरजीह देते हैं। मैं ना बिगाड़ूं किसी से, कहीं मेरा हल्का ना मुतासिर हो जाए, कहीं मेरी इलेक्टेबिलिटी ना मुतासिर हो जाए। रिवायत के तकाजे यही रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का तकाजा यह है कि आज जो पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है उसको सामने रखते हुए हम में से कुछ लोगों को सर उठाना होगा, सर उठा के जीने का सबक देना होगा। और उसमें तकलीफें आएंगी, यकीनन आएंगी, उस पर कीचड़ उछाला जाएगा, कातलाना हमले भी हो सकते हैं, कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त करना होंगी। लेकिन मुल्क के लिए ये आज पाकिस्तान की जरूरत है। कम से कम तहरीक इंसाफ तारीख में ये रिकॉर्ड करवाना चाहती है कि हम इस फस्तायत का हिस्सा नहीं रहे। और आज अगर आवाम की तर्जुमानी कोई जमात कर रही है तो वो तहरीक इंसाफ है। बाकी तो सब मसलहतों के तहत जमा हो गए हैं एक पीडीएम अलायंस में, जिसमें कोई नजरियाती ममासलत नहीं है, मफादात का जोड़ है। और उस मफादात के जोड़ का पाकिस्तान के मफादात से टकराव दिखाई दे रहा है।
और पाकिस्तान के लोगों को फैसला करना है कि उन्होंने पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है या पीडीएम के मफादात का। शुक्रिया। अच्छा सर, कौमी असम्बली का तो ऐलान हो गया है, नॉमिनेशन पेपर भी लिए जा रहे हैं, लेकिन जो है निगरान हुकूमतें जो है सूबाई और जो सूबे के इलेक्शन है उसके हवाले से न डेट अनाउंस हो रही है न कुछ, और शनीद यही है कि वो ये ज़िमनी इंतखाब कराने में कुछ संजीदा नहीं है। नवंबर में जनरल इलेक्शन में ही ये इलेक्शन होंगे। देखिए सवाल ये है कि आप देख रहे हैं 2 अमली, कहा जा रहा है, आइन तो बड़ा वाज़ेह है, आइन कह रहा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। हम अदालतों में भी गए हैं, पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट में हम हैं। हम जो कानूनी जंग लड़ सकते हैं लड़ रहे हैं, जो सियासी जंग लड़ सकते हैं लड़ रहे हैं, लेकिन हुकूमत के अज़ाइम कुछ और हैं। वो अपने मनपसंद नताइज देखना चाहते हैं। उन नताइज के हसूल के लिए वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मसरूफ है। आप देखेंगे वो बहुत से लोगों को बरगलाएंगे जो तहरीक इंसाफ के साथ चार साल रहे हैं, उनमें से कईयों को झुकाने की कोशिश करेंगे, उनकी वफादारियां तब्दील करने की, खरीदने की कोशिश करेंगे, जो की हैं उनने कौमी असेंबली में भी और पंजाब की असेंबली में की हैं, वो सब करेंगे। वो उनको ये झांसा भी देंगे कि आप इस तरफ रुख करें, अगर आपने अपनी सीट जीतनी है तो हमसे रुजू करें, और अगर आपने शिकस्त का सामना करना है तो अपने नजरिए पे कायम रहें। ये चुनाव हर फर्द को करना है, हर इंडिविजुअल को करना है कि क्या उसने अपनी जात को तरजीह देनी है या पाकिस्तान जिन उम्मीदों से हासिल किया गया उन नजरियात को तरजीह देनी है। ये डिफाइनिंग मोमेंट है, ये वाटरशेड है पाकिस्तान की सियासत में, और इस पर हमने देखना है कि हमें क्या करना चाहिए। ये नहीं चाह रहे इलेक्शंस। एक तरफ कहते हैं हालात साजगार नहीं है, अमन अम्मा की सूरत हाल, सिक्योरिटी सिचुएशन हमें इस बात पर मजबूर कर रही है कि हम अभी इस पर नजरसानी करें। इलेक्शन कमीशन और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स इस पर अपनी राय, केपीके ने कहा, उनका बयान आपकी नजरों से गुजरा होगा। और दूसरी तरफ ज़िमनी इंतखाबात के लिए जो पूरे